In fact, what we commonly term as a housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work in both rural and urban areas. Women and girls have fetches water. In rural areas, women and girls carry heavy households of fire. अब क्या होता है, मतलब हाउस होल्ड जो वर्क्स होते हैं वो ज़्यादातर किसको करना पड़ता है, विमेंस को या गर्ल्स को ही करना पड़ता है. जैसे आपने गांव में देखा होगा कि लड़कियां और औरतें कहाँ से कुओं से पानी भर कर लेकर आती, ना मटके में भर भर के कुओं से पानी खींच के लेकर आती हैं और अपने कंधे पर वो क्या करती हैं, फायरवुड के लिए लकड़ियाँ वो जंगलों से काट कर अपने कंधे पर रख कर लेकर आती हैं. टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, picking up loads require bending and lifting and carrying. बहुत सारे काम करती हैं औरतें, जैसे कि कपड़े को धोना, क्लीनिंग करना, स्वीपिंग करना और सामान को मतलब लेकर आना, उठाना, ये सारी चीज़ें. Many chores like cooking involves standing for a long hours in the front of hot stove. The works women do its strenuous and physical demanding words that normally associated with men. इसके अलावा औरतें क्या क्या करती हैं कि जैसे घर में खाना खड़े होकर बहुत देर तक गैस के सामने खड़े होकर खाना बनाती हैं ना, घर के सारे काम करती हैं, है ना. और मतलब बहुत सारे काम होते हैं वो ज़्यादातर घर के जो भी हैं वो कौन करती हैं, लेडीज़ करती हैं. Another aspect the house work and care giving that we do not recognize is that is very time consuming. In fact, if we add up housework and the work women do outside the home, we find the women spend much more time working than men and have much less time for leisure. अब क्या होता है, मतलब औरतें आदमियों से ज़्यादा काम करती हैं. जितना काम आदमी ऑफिस में करते हैं उससे ज़्यादा वर्क क्या करती हैं, लेडीज़ अपने घर में करती हैं. मतलब घर के सारे काम वो करती हैं. ओके. Below is some data for a special study done by the Central Statistical Organization of India 1998-99. See if you can fill in the blanks. कि देखिए एक डाटा है जो कि 1998-1999 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था. क्या स्टेट, कौन सा स्टेट है, वुमेन्स पेड वर्क्स फ्रॉम वीक, कितने आवर्स वुमेन्स काम करती हैं और कितनी अनपेड वुमेन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स हैं, मैन कितने काम करते हैं, कितने अनपेड मैन काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं. ठीक है, ये इस बारे में डाटा है. वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, औरतों का काम और इक्वालिटी बराबरता. As we have the low value attached to women, household and caregiving work is not individual or family matter. It is a part of a larger system of inequality between men and women. अब क्या होता है, जैसे वुमेन्स जो हैं वो घर के काम करती हैं और जो मेंस होते हैं वो बाहर के काम करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी आ जाती है ना. इट देयरफॉर हैज़ बीन अ dealt with through action not just at the level of individual or family but also by the government. As we know, the equality is an important principle of our constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. In reality, inequality between the sex exists. The government is therefore committed to understanding the reason for this, taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognizes that burden of the child care of household work falls on women and girls. This is naturally has the impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and cares they can have. The government has set up Anganwadis to child care centers in several villages in the country. The government has passed a law that mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crèches facility.
The provision of crutches help many women take up employment outside at home. It is also make the possible for more girls attend the school. अब क्या हो गया, अब गवर्नमेंट ने भी औरतों को इक्वल लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। जैसे औरतों को काम करने के लिए आंगनबाड़ी जो है उनको खोला है, उसमें औरतें काम कर सकती हैं, छोटे बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट ने क्रचेस वगैरह भी खोल दिए हैं, जिसमें कि कुछ औरतें बाहर अपना काम कर सकती हैं, ऑफिस में काम कर सकती हैं लंबे टाइम के लिए, तो वो अपने बच्चों को कहाँ क्रचेस में छोड़ जाएं, जहाँ पर उनकी अच्छे से देखभाल हो जाए। उस क्रचेस में भी क्या होती है, लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ उन बच्चों की देखभाल करती हैं। तो इससे क्या होता है, अब पहले तो जेंट्स काम करते थे तो इनइक्वालिटी रहती थी कि नहीं औरतें घर का काम करेंगी, बट अब क्या हो गया है कि औरतें भी बराबरी से बाहर के काम में आगे हो रही हैं। वो भी आगे बढ़ के अपने हस्बैंड्स का, अपने भाई का, अपने फादर का हाथ बटा रही हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स किए हैं इक्वालिटी को लाने के लिए। सो आवर चैप्टर 4 इज़ फिनिश्ड हियर। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।